وبفضلك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. ان سے پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد النجوم الافلاک وصلی علی سیدنا محمد بعدد اوراق الاشجار وصلی علی سیدنا محمد بعدد ذرات الرمال وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. در جوانی حاصل عمرم بنادانی گذشت. در جوانی حاصل عمرم بنادانی گذشت. آنکھ باقی ماندہ بود در پریشانی گذشت. آنکھ باقی ماندہ بود در پریشانی گذشت. بار خدایا تخمنی کی من نخشتم در جان نوبتی پیری رسیدہ نوبتی پیری رسیدہ وقت بیگانی گزر. خدایا بند چوس شرمند چونی. پنن گناہ تھٲیِو برونٛٹھ کُن یِمن منٛگِو استغفار. یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ قیٖمتی وقت یِم اکھ شُعاع چھُ قیٖمتی. ییٚلہِ أسۍ چھلنہٕ یِمو أنٛدرٕ صفٲیی گژھِ ییٚلہِ توبہٕ سۭتۍ گژھِ صاف گژھو اَدٕ اگر کانٛہہ تہِ دۄہ پَرو تہٕ عبادت کَرو سۄ گژھِ منظوٗر. خدایا بند چوس
شرمند چونی باعثی چھس چھو بخشند میانی خدایا چائے رحمت بے نہایت افو کر تم کرتا وہی عنایت خدایا گست بوجی خست حالت خدایا گست بوجی خست حالت گسی کیا کم زیاد جاہو جلالت گسی کیا کم زیاد جاہو جلالت قبر چھم ناد لائن غافلو پار قبر چھم ناد لائن غافلو پار تبر چھم طالبیات موتیں بلا شک تبر چھم طالبیات موتیں بلا شک وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کس زبان سے اس مالک کبریا کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں آج کے دن کی یعنی جمعۃ الوداع کی ملاقات کرائی. ماہ مبارک آیا جا رہا ہے، الوداع ہو رہا ہے. برکتوں، رحمتوں، عفو و درگزر کا مہینہ، مساوات کا مہینہ، سخاوت کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، قرآن خوانی کا مہینہ، سحر خیزی کا مہینہ، کم کھانے کا مہینہ، کم بولنے والا مہینہ، کم سونے والا مہینہ ہم سے رخصت ہوا جا رہا ہے. یہ مہینہ، اس کا ایک ایک لمحہ قدر والوں کے پاس بہت قیمتی ہے. ہم سے جو رخصت ہوا جا رہا ہے، خوش قسمت وہ لوگ ہیں اور دونوں جہانوں میں آبرو والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی صحیح معنوں میں قدر و منزلت کی اور ایمان اور احتساب سے روزہ رکھا. الغرض دیکھنا یہ ہے کہ قرآن، یہ ماہ مبارک نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے کیا لیا. رب العالمین کی طرف سے یہ مہمان ہمارے پاس آیا تھا بخشش و رحمت اور مغفرت لیتے ہوئے. وہ انسان کتنا بدقسمت ہے جو اس ماہ مبارک میں بھی اپنے گناہوں سے استغفار نہیں کرتا. مقصد روزے کا صرف اور صرف یہ ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں، کہ نفس کو قابو کرنا، نفس کو کمزور کرنا، پھر اس کو ماتحت کر کے اپنے ماتحت کر لینا اور راستے پر چلانا، صراط مستقیم پر چلانا. وہ تب ہوتا ہے جب اس کو غذا کم دی جائے. 3 چیزیں جو ہیں خاص لب و لباب نچوڑ جو ہے ماہ سیام کا، صرف 3 چیزیں ہیں: قلت الطعام، قلت الکلام اور قلت المنام. 3 چیزیں جو ہیں، کم کھانا، کم باتیں کرنا اور کم سونا جو ہے، یہ ماہ سیام کا سب سے بڑا تحفہ ہے. سرکار دو عالم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक हसना भी यही 3 चीज़ें थी, किल्लतुल कलाम, किल्लतुल तआम, किल्लतुल कलाम और किल्लतुल मनाम। आपका इखलाक हसना भी यही 3 चीज़ें थी। अब दूसरी जगह फारसी शेर में शेख सादी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि आशिकी रा शशची निशान अस्ताई पिसर, कि अगर तूने खुदा का आशिक बनना है, खुदा का माशूक बनना है और खुदा की पहचान अपने अंदर पैदा करनी है, तो तेरे पास 6 निशानियां होनी चाहिए। ये खामखा नहीं कोई कहेगा कि मैं खुदा के पास पहुंच गया, मुझे मार्फत इलाही हासिल हो गई। नहीं, उसके पास सबूत होना चाहिए, उसके पास किरदार होना चाहिए, उसके पास आमाल सालेह होने चाहिए, उसके पास इखलाक हसना होना चाहिए और इत्बाए रसूल होना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिकीरा शशची निशानस्त आई पिसर, आहे सर्दो रंग जर्दो चश्मतर। आहे सर्द, वो इंसान कभी खुश नहीं होगा। आहे सर्द होगी, उसके पास अफसोस वाली आह होगी। रंग जर्दो, उसका रंग जो है जर्द होगा। चश्मे तर, उसकी आंखों में हमेशा आंसू रहेंगे। 3 निशानियाँ ये आ गई। गर तोरा पुरसंद सहदीगर कुदाम, अगर कोई पूछेगा 3 बाकी निशानियाँ कौन सी हैं, शेख सादी साहब ने फरमाया है गर तोरा पुरसंद सहदीगर कुदाम, कम खुर्दन कम गुफ्तन खुफ्तनो हराम। कम खाना, कम बोलना और सोना हराम। ये खेल नहीं है। कायनात के मालिक की पहचान पैदा करनी है, वो मालिक जो सारी कायनात को बैक वक्त देखता है, बगैर आंख के देखता है। सारी कायनात के राज जो ज़ाहिर बातें होती वो भी, जो अंदर दिल में अलीमुम बिज़ाति सुदूर, जो अंदर दिल में राज है वो भी जानता है और ज़ाहिरी आवाज़ भी सुनता है, हाँ सारी मखलूक की, लेकिन बगैर कानों के सुनता है। वजूद से पाक है और हर जगह मौजूद है। वनयो सिर असरार ये नवासक मुबली, कि मैं आपको राज की बात कहूँगा। किसी आशिक ने खूब कहा है कि मैं आपको राज की बात कहूँगा, किसी को सुनाना नहीं। मेहा हर जाय उस यार छुलो का मोइत खैली, मैंने हर जगह अपने माशों को देखा, कोई जर्रा भी खाली नहीं है। जो चीज सामने दिखाई देती है किसी ने बनाई है फिर बनी है, ऐसे नहीं बनती। जब देखने वाला इस नज़र से देखेगा कि ये किसने बनाई है, कैसे बनाई है, तफक्कुर में पड़ेगा, तो उसको अपना माशूक जो है उसकी मार्फत हासिल हो जाएगी। तफक्कुर सात अफदलो मिन इबादत सन्ना, हदीस शरीफ है, काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक घड़ी का तफक्कुर करना, सोचना, इस कायनात पर सोचना 1 साल की इबादत से अफजल है। इन सजदों से खुदा नहीं मिलता जिनमें तवज्जो ही खुदा की तरफ न हो। इन नमाजों से खुदा नहीं मिलता जिसमें इंसान का ध्यान ही बाहर हो। अब सवाल पैदा होता है, इतना बड़ा खुदा, अल्लाह अकबर कबीरा, इतना बड़ा खुदा हम अल्लाह अकबर कहते हैं, इसका अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है, इसकी मार्फत हासिल कैसे की जा सकती है। लेकिन जब तक न नफ्स कंट्रोल में होगा, इंसान के अंदर ये नफ्स जो है ये बुराई, नामशरूआत, लज्जात और शहवात का हुक्म करता है। इंसान को मलाई से आला दर्जा जो इसका है उसे उतार कर असफल साफिलीन में ले जाता है, सबसे घटिया दर्जे पर ले जाता है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ताला फरमाता है मैंने इंसान को बेहतरीन तरकीब से बनाया है, सबसे आला और अफजल बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है। क्या ज़रूरत पड़ी थी?
लाखों करोड़ों लातादाद मलाइक खुदा का जिक्र कर रहे हैं। कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई खड़ा है, कोई कादा में है। जब से पैदा हुए तब से जिक्र कर रहे हैं, कभी रुके ही नहीं। और कायनात सारी युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो आसमानों में ज़मीनों में है सब जिक्र खुदा का करता है। एक जर्रा जर्रा खुदा का जिक्र करता है। हर गया है क्या ज़मीं रोयत वहदहू ला शरीक में गोयत। जो घास का तिनका जमीन से उगता है वो वहदहू ला शरीक कहता कहता उगता है। अब इस इंसान को क्या जरूरत पड़ी पैदा करने की? इसको क्यों पैदा किया? इसको इसलिए पैदा किया है इबादत के लिए, लेकिन इसका अफजल दर्जा तब है जब ये नफस पर कंट्रोल करेगा और इब्लीस से अपने आप को बचाएगा। इसको जहाद करना है, जंग है, जहाद है, और जहादी अकबर है, जहाद असगर नहीं, छोटा जहाद नहीं। ये छोटा जहाद जो तलवार से हम करते उसको छोटा जहाद कहते हैं। ये जहाद अकबर है, ये बड़ा जहाद है। हर सांस में दुश्मन कोशिश करता है। मस्जिद में बैठा है, ध्यान चला गया हो दुकान का, पता नहीं दरवाजा बंद किया था नहीं बंद किया, पता नहीं गाय को घास डाला था नहीं डाला था, पता नहीं वो काम किया था, तसव्वुर बाहर ले गया। कितना बड़ा दुश्मन है, लेकिन जानने वाले जाने नहीं, आम इंसान को पता नहीं चलता है। जब ये अंदर कंट्रोल काबू कर लेता है, इस खजाना इंसान के दिल के अंदर खजाना है, मार्फत का खजाना है। इस पर जो नफस है ये शामार है। जब तक ये मरेगा नहीं तब तक खजाना नहीं निकलेगा। सवा समुद्र सैन्य सोन मोहित क्या जाइन ओन। इसी आशिक ने कहा है तो जो सांस का समुंदर तेरे अंदर है, बातन में जो तेरे अंदर सांस का समुंदर है जिसमें तेरा तस्वर आ रहा है, इसके बीच में तू गोता मार दे। सवा समुद्र सैन्य सोन मोहित क्या जाइन ओन। मोहित कहते हैं बाहरी किनारे को, कहता है समुद्र का ये बहरे बेकरार है, इसमें कोई किनारा नहीं, लेकिन तुझे किनारे के साथ वास्ता नहीं, तू अंधा बन जा और इसमें छलांग लगा दे। सहलछा मायन बोजुन, सहलछा मायन बोजुन छी बोजान गाटेली। गाटेल कहते हैं अकलमंद को, उलुल अलबाब को। जो अकलमंद लोग हैं वो इसका मायने चुनते हैं। क्या नहीं इंसान के अंदर ये बादशाह है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, लोहो कलम तेरे। लेकिन कायनात का जर्रा जर्रा खुदा का जिक्र करता है और ये निशानदही भी देता है कि इसको खुदा ने बनाया। शहीदत बेरबूबती ही मसनुआतहू। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये बनी हुई चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं, नबातात है, जमादात है, इंसानात हैं, हैवानात हैं, ज़मीन है, आसमान है, पानी है, हवा है, दरख्त है, फल है, जो भी चीज़ रिज़्क़ है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी ने बनाया है, खुद ब खुद नहीं बना। उसी मालिक ने हमको दुनिया में भेजा है अपनी मर्जी से, खुद नहीं आए। शक्ल सूरत भी उसी ने बनाई माँ के शिकम में, और ज़बान को पाक रखा और नाक के ज़रिए उसको गज़ा दी, नाक के ज़रिए गज़ा दी। क्यों दी? कि ज़बान पाक रहे, इससे दुरूद ख्वानी करनी है, इससे ज़िक्रुल्लाह करना है। ये ज़बान पाक रहे, नाक के ज़रिए उसको गज़ा मिले, क्योंकि उसकी गज़ा जो है हैज़ व नफास होती है। कितनी मेहनत से शक्लो शबात बनाकर ऐसे पुर्जे इसके अंदर लगाए कि ये सुनता भी है, देखता भी है, सोचता भी है, ऐसे दिल भी है इसके अंदर रखा है, ऐसे पुर्जे इसके अंदर रखे, पूरी अपनी खुदाई का एक नमूना पेश कर दिया। शाहकार है, कुदरत का शाहकार है इंसान। शाहकार कहते हैं सबसे बड़ा कारनामा, जो सबसे बड़ा कारनामा ये इंसान है, और खुद जो है इससे बाहर नहीं है, खुद भी इसके पास है, खुद भी इसके पास है। जब से इसने सांस लेना शुरू किया तो खुदा की ज़ात इसके अंदर आ गई। जब सांस निकल जाएगा तो मुर्दा बेकार हो जाएगा।
सारे रिश्ते खत्म। नफस को काबू करना, अंधेरे कमरे में बैठा है आदमी, कोई नहीं है वहाँ पर, पानी भी है, नस्वार भी जेब में है, खाना भी है, फल भी है, सब कुछ है, लेकिन खाना नहीं। खाना नहीं, क्या है? रोज़ा है। इसका मतलब है कोई ऐसी ज़ात है जो हमें अकेले में देखती है। हम तो साथी को ढूंढते हैं ना, ये साथी वो साथी आ जाए, हमारा साथी है, जीवन साथी है, वो है ये, लेकिन उससे बढ़कर, उससे करीब तर और सबसे अफजल व आला साथी भी है कोई जो हमें हर वक्त देखता है। इसका तसव्वुर रोज़ा दिलाता है। अकेले में खुदा की खुदाई की शान जो है रोज़ा दिखाता है। अरे तू तो खाता, तू तो पानी पिएगा, लेकिन तुझे तो खुदा देखता है। तू तो नफसानी बातें करेगा, शहवत वाली बातें करेगा, लेकिन तुझे खुदा देखता है, तुझे खुदा देखता है। जब ऐसा तस्वर जहन में आ जाए कि मुझे खुदा देखता है, इंसान गुनाहों से पाक। जब कम खाने की आदत पड़ेगी तो इंसान फरिश्ता बन जाएगा। कम बोलना, कम सोना, कुदरती बात है, जब नफस में कम गज़ा हो तो नींद भी कम आती है। जब हम कम खाएंगे और कम बोलेंगे और कम सोएंगे तो हमारे अंदर औसाफ हमीदा पैदा होंगे, मलाइकों वाले औसाफ पैदा होंगे हमारे अंदर, और दिले पाक जो है वो हमारे अंदर पैदा होगा। इसीलिए इसको जहाद अकबर के लिए तैयार किया गया है कि आपने नफस के साथ और इब्लीस के साथ जहाद करना है। इस दुश्मन को रोकना है, फिर दोस्त को ढूंढना है। मलाइकों का जिक्र करना क्या कमाल है। खुदा को देखा है, आसमानों पर है, मलकूती दुनिया में है, आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको पता है। हमें तो पता ही नहीं है खुदा कहाँ है। था तो सब कुछ सामने, लेकिन इब्लीस ने और नफ्स ने अंधा बना दिया। दुनिया में आए थे, जब माँ की शिकम से बाहर आए, रोते रोते आए। जब इस दुनिया को देखा, आँख खोली तो दुनिया पानी को देखा, और ये कभी नहीं सोचा, जब बड़े हुए तो कभी नहीं सोचा ही किसने बनाई है। अलबत्ता इतना ज़रूर किया कि इसका इंतकाल अपने नाम करा दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। और हर वक्त दिल में ये ख्याल रखा कि मेरी ज़मीन, मेरा मकान, मेरा बेटा, मेरी जायदाद, मेरी दौलत, मेरा कहा, हालांकि कुछ है ही नहीं अपना। अरे इंसान, तेरा तो तेरा वजूद भी तेरा नहीं है, ये भी किसी की ताकत पर चलता है। अलगरज नमाज का वक़्त भी हुआ चाहता है, वक़्त की किल्लत भी है, लेकिन माह श्याम जा रहा है। अब हम अपने दामन में ज़रा झांक के देखें, क्या हम कम खाने वाले बन गए? क्या हम कम बकवास करने वाले बन गए? ज़्यादा बातें करने से दिल इंसान का मर जाता है। हदीस में ज़्यादतुल कौल ताहके नक्से फिल अमल, अमाल का घाटा, वो मन के कुल मरी मैं यहदी हो लिजुलल। अगर मोती भी उसके मुंह से बिखरेंगे, अगर मोती भी एक बात से निकलेगा, तब भी उसका दिल मर जाएगा। इल्ला खुदा, जिक्रुल्लाह से नहीं। कम बातें करने वाले हम बन गए, कम सोने वाले बन गए। क्या हम सहर खेज बन गए? सहर खेज का मतलब है सहरी को जागने वाला। जो सहरी को जागता है, खुदा को वही ढूंढ सकता है और पा भी सकता है। उसके बगैर कोई पा नहीं सकता खुदा को। सहरी के वक़्त, हर वक्त सहरी के वक़्त जो है खालिक के कुल जो है आसमानी दुनिया पर बजाते खुद मौजूद होता है। हर रोज़ शब बरात को तो सारी रात को आता है, शब कद्र को भी होता है, लेकिन रोज़ाना जो है खुदा की ज़ात जो है, समीन बसीर ज़ात जो है, आसमानी दुनिया पर सहरी के वक़्त होती है। सहरी को जागेगा, 4 रकात नवाफिल पढ़ेगा, उसके बाद दुरूद हज़ारी 111 बार पढ़ेगा,
इसकी आदत हमें बनानी है। सहरी को जागना इसीलिए रखा गया है। जब हमारे अंदर ये आदत पैदा हो जाएगी, ये नहीं कि माहिश्याम गया और फिर हम सुबह मज़े से सोएंगे, नींद करेंगे, क्या सोने के लिए तो वहाँ कब्र है। जागना है जाग जा अफलाक के साए तले, अगर जागना है तो जागता रहे आसमान के साए, वरना हशर तक सोया रहेगा खाक के साए तले। फिर तो क़यामत तक सोना है। सोने के लिए तो वहाँ काफ़ी जगह है, काफ़ी वक्त है, हज़ारों साल हैं, लाखों साल हैं। जागना यहाँ है, देखना है ये दिन किसने बनाया, आसमान बगैर सतून के किसने बनाया, ये ज़मीन किसने बनाई। हम पत्थर को उठाते हैं, अरे बताओ बनाया किसने, कब बना, कब बना। हमारी उम्र तो 30 साल 40 साल 60 साल है, ये पत्थर कब बना? ये तो आदम अलैहिस्सलाम से पहले का बना है। पहले का बना है, किसी बादशाह ने नहीं बनाया, किसी पार्टी ने नहीं बनाया, किसी इंसान ने नहीं बनाया। देखो जरा खुदा की बनाई हुई चीज़ों को हाथ में उठाओ, देखो, फिर उनको प्यार करो, ऐसे आंखों से लगाओ, मेरे मालिक तू ही है, तूने इनको बनाया। उसको ढूंढना है, उसको पाना है। जब शहर खेज बनेंगे, कम बोलने वाले हम बनेंगे, कम खाने वाले बनेंगे, कम सोने वाले बनेंगे, तो यकीनन ये होगा कि हमारे अंदर मारिफत इलाही पैदा होगी। मारिफत इलाही आम बात नहीं है, कहने की बात नहीं है। तो मचो निंदरियों तो होशत में छुआ आ नमाज में 5 मिनट हम भी मारिफत इलाही आम बात नहीं है। जैसे एक शहद की पेटी होती है, पेटी बनाई जाती है, उसको सफाई की जाती है, बाहर से उसको खुशबू लगाई जाती है, उसको रखा जाता है किसी खास जगह में, फिर शहद की मक्खियाँ आती हैं, उसके अंदर शहद बनाती हैं। फिर वो शहद कितना मीठा होता है सब ने खाया है, सब ने देखा है। बराबर ऐसे ही इंसान के अंदर जो है एक बहुत बड़ा मार्फत का ज़ख़ीरा पैदा हो जाता है। उसके अंदर से हसद, बुग़्ज़, लालच, बदकलामी, बदबीनी, यानी देखना, बुरा सुनना, सोचना बुरा, ये सब बातें ख़त्म हो जाती हैं। जब ये सब बातें ख़त्म हो जाती हैं तो उसके अंदर जो है ऐसे निशानात पैदा हो जाते हैं कि वो सोचता है कि मेरे अंदर कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जहाँ जब तुम अकेले होते हो मैं दूसरा आपके साथ होता हूँ, अगर तुम 2 हो मैं तीसरा आपके साथ हूँ, अगर तुम 4 हो मैं 5वां आपके साथ हूँ। अरे किस साथी को छोड़ दिया और किन साथियों को पकड़ा, वो आप खुद देखें, दामन में देखें जरा, हम देखें दामन में हमने क्या किया, हमने किसको अपना कहा और कह किसको रहे हैं, हमारा जो वक्त किस पर सरफ हो रहा है। अरे रिज़्क़ तो देने वाला कायनात का रज़ाक है, समुद्र में मछलियों को रिज़्क़ देता है, पत्थर में कीड़े को रिज़्क़ देता है। क्या हम भूखे रहेंगे? जंगली जानवरों को रिज़्क़ देता है। एक टाइम में शिकार करते हैं, साथ उठाकर नहीं लेते हैं, वो रात के लिए नहीं लेते हैं। इंसान को कितनी फिक्र है, हाय क्या खाएगा, हाय कैसे कब खाएगा, ज़ख़ीरा करेगा। क्या हो गया इंसान, तेरे साथ तो तेरे दुश्मन ने वो दुश्मनी की कि तुझे रखा ही नहीं किसी काम के लिए। इस जहान में भी मार दिया, उस जहान के लिए भी मार दिया। कहा जिसको देखना था, जिसको खुदा का फर्ज कहना था, उसको कहा मेरा है। जो खुदा ने दिया उसको कहा मेरा है। जो कुछ खुदा ने दी उसको कहा मेरा है। बोलने की ताकत खुदा ने दी। अब ये सोचता नहीं मैं बोलता हूँ तो कितना सही बोलता हूँ, कितना गलत बोलता हूँ। जब ज़्यादा बातें करेगा, दुनियावी बातें करेगा, दिल पर जंगार लग जाएगा और उसके मुंह से फिर बात गलत निकल जाएगी। कंट्रोल ज़बान पर नहीं हो सकता उसको, क्योंकि वो फिसल जाएगा। ज़बान पर कंट्रोल होगा जब ताला इसको चढ़ेगा। जब इसको ताला चढ़ेगा तो अंदर सरमाया बनेगा, अंदर बनेगा सरमाया। जब अंदर सरमाया बनेगा तो चोर की नज़र ताले पर है, चोर की नज़र ताले पर है, वो उसको खोलने की कोशिश करेगा, तोड़ेगा इसको। अरे इंसान तू सोच, तेरे अंदर सारा सरमाया मौजूद है, तुझे सब पता है। तू मालिकल मुल्क का बंदा है, आम इंसान नहीं है। तुझे मालिकल मुल्क ने, सारे बादशाहों का बादशाह है। तो तिल मुल्क मंतशाओ, मैं देता हूँ बादशाही जिसको चाहता हूँ मैं देता हूँ। अरे वोटों से बादशाह नहीं बनता है, वो खुदा देता है बादशाही। वो फैसला होता है वहाँ से, जहाँ नूरानी मजलिस है वहाँ फैसला हो जाता है कि किसको बादशाही मिलेगी, उसी को मिलती है। वो तसव्वुर उसी तरफ जाता है।
हम कितना ही पकड़ के रखेंगे तस्वर को कि ये करना है, ये करना है, जब वो ऊपर से जोर आता है तो कुदरती तस्वर बदल जाता है। घर से निकले थे कुछ और सोचकर, जब वहां पहुंचे कुछ और सोचा, वहां उंगली कहीं लगानी थी लग गई कहीं। ये तो मालिक का काम है। अरे तुझे क्या फिक्र है, तुझे क्या फिक्र है? ये तो उसने करना है, जो करना है वो करेगा। अगर तेरे ऊपर जालिम बादशाह आ जाएगा तो तेरे कर्म ऐसे होंगे, तेरी सोच ही ऐसी होगी, तब जालिम बादशाह आएगा। तेरा तस्वुर ही ऐसा होगा जब जालिम बादशाह आएगा। सिर्फ तस्वुर को सीधा करना है और अपने आप को देखो कि हम जिंदगी चली गई 40 साल से ऊपर, 50-60 से ऊपर तो बेकार है जिंदगी, चली गई। फिर कब खुदा ढूंढना है हमने, कब ढूंढना है, कब मिलेगा? हम मस्जिद में आते हैं, रस्मी तौर पर आते हैं और नजर होती है घड़ी पर, कब टाइम होगा तो जाएंगे, जनाजे पर जाएंगे। पहले पूछते हैं जनाजा कितने बजे है जी, कितने बजे है जी जनाजा? मुंह धोने के बगैर चले जाते हैं। फिर वहां जाकर फिर पानी ढूंढते, कहाँ पर है पानी जी? वुजू बनाएंगे। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? बेवुजू इंसान के साथ इब्लीस हर वक्त रहता है। बावुजू इंसान किसे इब्लीस ऐसे डरता है जैसे बाहथियार इंसान से जो है कोई डरता है। हथियार वाला इंसान जो होता है वो बावुजू होता है। तो अर्ज ये है कि खुदा के लिए अपने दामन में झांकें। कम खाना, कम सोना, कम बातें करना, माह मुबारक कुरान ख्वानी करना। ये कुरान ख्वानी का महीना है, तंजीलुल कुरान का महीना है। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ है जो रुश्द व हिदायत की किताब है। वो नूर ही नूर है, नूर ही नूर है। शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक के बारे में क्या खूब फरमाया है। बस यही एक शेर कहता हूँ, उसके बाद सुन लेता हूँ। कुरान परान परान कोनो मुदो, कुरान परान परान कोनो गोई सूर, कुरान परान परान जिंदगी थ्रू दो, कुरान परान परान दुध मंसूर। ये वो नूर है, पहाड़ों ने इसको उठाने से इनकार किया। लव अंज़लना हाज़ल कुरान वाला जबल। कुरान को देखो। हमें तो उस वक्त याद आता है जब कहीं फातिहा ख्वानी करनी हो, जब कहीं साता हो या 40वां हो, उस वक्त कुरान पढ़ते हैं। इस तरह कुरान नहीं पढ़ते हैं हम। इसको पहाड़ों ने इनकार किया, हम नहीं इसको उठा सकते हैं, ये नूर है, हम नहीं उठा सकते। वह हमलहुल इंसान, इंसान ने इसको उठा लिया। इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। कितना नादान है, कितना गाफिल है ये इंसान। इस नूर को उठाया जिससे पहाड़ जल जाएंगे, इस नूर को उठाया और फिर इस पर अमल भी नहीं करता, ताकि निस्या में रख दिया है। अब हम अल्लाह से दुआ करेंगे, वो मालिक जो हमारे सांसों में बसा हुआ है, हमारे अमाल को देखता है, हमारे जागते सोते हमारे नज़दीक है, उससे दुआ करेंगे। दस्त बदुआ है, मेरे मौला इस माह मुबारक के तफैल हमारे गुनाहों को बख्श। हमने उम्र सारी गफलत में गुजारी है, हमारे उम्र पर रहम फरमा। मेरे मौला हमें हिदायत दे, हमारे बीमारों को शफा दे, हमारे गरीबों को अमीरी अता फरमा, हलाल की रोज़ी अता फरमा, हमें दिल का सुकून अता फरमा, हमें ज़बान पर कंट्रोल अता फरमा, हमें आँखों पर कंट्रोल अता फरमा, हमारे अंदर से हसद और बुग़्ज़ को निकाल दे। मेरे मौला हम पर रहम फरमा। और जब आखिरी वक्त आएगा हमें दुनिया से बाईमान ले जाना, इस फानी दुनिया से बाईमान ले जाना। हम वादा करते हैं, हम तुझे इकरार करते हैं कि हमारा कुछ नहीं, तूने हमें भेजा है, तू हमें ले जाने पर कादिर है। तेरे ही हुक्म से हम आए हैं, तेरे ही हुक्म से जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। ईद फितर जो है 75